A very good morning in Jai Hind class 12th. How are you all? Hope you all are doing fine. Continuing with chapter number 6, dear students, we are done with the stages in staffing process. Right? Today, we are going to start the next topic, that is estimating manpower requirements. That is human resource planning. Yes, I guess so. We are done in the Zoom meeting, but let's just recall it, right? So there are 2 points. For estimating human resource requirement, a company needs to carry out workload analysis and workforce analysis. What is there in workload analysis, dear students? इसमें the company needs to determine the workload of the organization, the total workload of the organization, right? मतलब कितने लोग total number of people who are working within the organization, that is workload analysis. And what is in workforce analysis? That means involving listing the number and type of personnel available within the organization. कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं. अब अगर शॉर्टेज होती है तो यू नीड टू हायर मोर पीपल, एंड इफ गो सरप्लस तो यू नीड टू ट्रांसफ़र द पर्टिकुलर स्टाफ. ठीक है, इनके डिफरेंस से यू गेट इट टू नो. देखो यहाँ पर आपको टोटल पता चल जाता है, नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु आर वर्किंग. वर्कफोर्स में यू गेट टू नो कि हाउ मेनी पर्सनस आर स्टिल अवेलेबल. अगर सरप्लस है तो प्रमोशन आप ट्रांसफ़र कर देंगे. इफ़ शॉर्टेज इज़ देयर तो आप हायर कर लेंगे, रिक्रूट कर लेंगे. फॉर दैट देयर आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग रिक्रूट करने के देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, एंड दे आर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, विच वी हैव ऑलरेडी डन. बट अब हम इसे डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, राइट? आपने देखा कि यहाँ पर शॉर्टेज हो गया है. शॉर्टेज हुआ है तो शॉर्टेज में व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एचआर? टू रिक्रूट द पर्सनल, टू रिक्रूट अ पर्सन. अब रिक्रूटमेंट में क्या होता है? हियर आइडेंटिफिकेशन एंड अट्रैक्शन ऑफ टैलेंटेड पर्सन इज देयर. See, it is a process which aims at attracting adequate number of suitable candidates to apply for the given jobs which have fallen vacant. जो जगह खाली हुई है उस जगह को फिल करना इज़ द एम हियर. और वो कैसे फिल होता है? वी अट्रैक्ट द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द गिवन जॉब, right? If the people get to know that there is a vacancy in the organization, they started giving their resumes, submitting their resumes, CVs, they started approaching the organization. It is the responsibility of the organization to receive those applications, and that process is known as recruitment. Now comes selection. It is a process which aims at selecting the most suitable person out of the various candidates who have applied for the job. You have got the applications here in the process of recruitment. Now it is your responsibility to select the most suitable person out of the number of candidates who have applied for the job, right? That is called selection. Now when you appoint that particular person, now when you fill that position, it is the responsibility of the superior to give the training. It will upgrade the knowledge of that particular employee, knowledge और साथ ही में skills. चाहे वो कितना experienced है, but आपकी कंपनी के लिए he is the new appointee. It is the responsibility of the superior to train the particular individual so that his knowledge will be upgrade, his skills will be upgrade, right? To enable them to do their job proficiently. उसे किसी तरह की कोई confusion ना हो और वो अपनी job को अच्छे से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, प्रोफिशिएंसी के साथ फुलफिल करें. लुक एट द एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग. हियर इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, एप्लीकेंट्स, पर्सन, ठीक है, दोज हु आर लुकिंग फॉर द जॉब, राइट? Recruitment process have started where identification and attraction of talented person is there. Then comes selection by the organization through assessment, evaluation, and appointment. Once they've appointed, once the individual has appointed, acquainting and skill development. He started giving training to upgrade his knowledge and skills.
ओके, नाउ कम्स द रिक्रूटमेंट. अब इसे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे. व्हाट इज रिक्रूटमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड व्हाट आर द सोर्सेज. Recruitment is the process. According to Edwin B. Flippo, recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. क्या होता है बेटा रिक्रूटमेंट में? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस दैट इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम सर्च करते हैं एम्प्लॉयज़ को सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. आइडेंटिफाई करना थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट. सोर्सेज मैंने आपको बताया था वो कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, एडवर्टाइज करके भी हो सकता है, बट इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस. रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस. कैसे? आपने अपना स्कूलिंग फिनिश किया, आपने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फिनिश किया बेटा. आफ्टर दैट यू गेट टू नो कि आफ्टर डूइंग योर MBA यू गेट टू नो कि मैनेजर की रिक्वायरमेंट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू. दैट इज़ वाई वी कॉल्ड रिक्रूटमेंट एज अ पॉजिटिव प्रोसेस. यहाँ पर आप अपॉइंट नहीं कर लिए गए हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जस्ट फॉर विच पोजिशन यू आर लुकिंग फॉर, ऑर्गेनाइजेशन में उसी पोजिशन के लिए वैकेंसी आ गई, तो फॉर यू इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस. इट अट्रैक्ट सुटेबल एप्लीकेंट्स हु अप्लाई फॉर द अवेलेबल जॉब्स. द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें क्या क्या होता है? आइडेंटिफाइज द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई. लेबर सप्लाई कैसे? लेबर सप्लाई होता है थ्रू कंसल्टेंट्स. लेट्स सपोज एडवर्टीज़मेंट आप करते हो, एडवर्टाइज़ करते हो आप कि हमें ज़रूरत है लेबर की, मैनेजर की, ठीक है. तो आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई. नेक्स्ट इज एक्सेस देयर वैलिडिटी. राइट, अब ये भी देखा जाता है आप एडवर्टाइजमेंट तो कर रहे हो, क्या वो एडवर्टाइजमेंट ऐसे न्यूज़पेपर में जा रहा है जो सभी के पास इजीली अप्रोचेबल होता है? क्या आप ऐसे कंसल्टेंट को अप्रोच कर रहे हो कि वो फेक तो नहीं है, आपसे पैसा ले ले, किसी इंडिविजुअल से पैसे ले ले, ठीक है, तो वो आपकी कंपनी को हो सकता है कि कोई टैलेंटेड इंडिविजुअल ना दे, तो आप उसके वैलिडिटी को एक्सेस करोगे. देन यूल चूज़ द मोस्ट सुटेबल सोर्स. आपको लगता है एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, आप इस सोर्स को चूज़ करोगे. आपको लगता है आपको कंसल्टेंट को चूज़ करना चाहिए जो आपको अच्छा बेस्ट कैंडिडेट आपकी कंपनी के लिए दिलाएगा, हेल्प कर सकता है, आप उसे चूज़ करोगे. देन इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर वैकेंट जॉब्स. इसके बाद अगर इन दोनों से भी आपका काम पूरा नहीं हुआ तो आप इनवाइट करेंगे एप्लीकेशंस. पीपल केम टू यू थ्रू कंसल्टेंट और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है. यू जस्ट इनवाइट दोज एप्लीकेशंस जिस जॉब के लिए आप देख रहे हो. ओके, सो इट इज़ कंसर्न विद लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर कॉन्सिडरेशन ऑफ सिलेक्शन. आप एप्लीकेशन रिसीव करोगे फ्रॉम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और उसके बाद उनका सिलेक्शन करोगे. ये बाद का प्रोसेस है. एप्लीकेशन रिसीव कैसे करोगे आप बेटा? आप एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए, लेट्स सपोज आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर की रिक्वायरमेंट है. क्या करोगे? या तो अपने रिलेटिव्स को बोलोगे, ऑल द टाइम रिलेटिव्स अवेलेबल नहीं होते हैं. आप एक कंपनी के ओनर होने के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप किस तरह से प्रोडक्शन मैनेजर की पोजीशन को फिल करेंगे? आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ कर देंगे. कंसल्टेंट जो कि लोगों से कुछ पैसे चार्ज करते हैं, उसके बदले में उनके टाइप्स होते हैं कंपनीज से, वो कंपनीज में वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग दे इन्फॉर्म द पीपल दैट हियर आर दी वैकेंसीज एज पर योर रिक्वायरमेंट, सो यू कैन गो एंड ग्रैब द जॉब. इंटरव्यू देते हैं वो, मतलब उससे पहले वो क्या करेंगे, जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन छोड़ेंगे, अपनी बायोडाटास छोड़ेंगे, वो सब HR डिपार्टमेंट के पास जाएगा. राइट, इट एनेबल द मैनेजमेंट टू सेलेक्ट सुटेबल एम्प्लॉय फॉर डिफरेंट जॉब्स. आपके पास इसी प्रोडक्शन मैनेजर के लिए कम से कम 10 CVs आ जाएंगे थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, चाहे एडवर्टाइजमेंट से, चाहे कंसल्टेंट से. राइट, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस. अब दूसरा स्टेप आता है सिलेक्शन का, जहाँ आपको पता चला कि प्रोडक्शन मैनेजर की वैकेंसी, आप खुश हो गए, आपके लिए पॉजिटिव प्रोसेस है. आप कंपनी में गए, आपने बराबर में देखा मेरे बराबर में तो 10 लोग और बैठे हैं, मतलब यहाँ पर दे रिक्वायर 1 or 2 मैनेजर
for the particular position. So selection is a negative process. यहाँ पर सिलेक्शन होता है या रिजेक्शन होता है. सिलेक्शन होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है उस कैंडिडेट के लिए. रिजेक्शन होता है तो उस कैंडिडेट उन जिनका रिजेक्शन होता है उनके लिए वो नेगेटिव हो जाता है. चलो, अब जहाँ हम बात कर रहे थे सोर्सेज की, तो मैम ने आपको 2 सोर्स बताए हैं. अभी तो बहुत सारे सोर्सेज के बारे में आप पढ़ोगे, कंसल्टेंट या एडवर्टाइजमेंट. बट एक्चुअली जब रिक्रूटमेंट की बात होती है, जब हम सर्च करते हैं लेबर को, तो हमारे 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ओके, इंटरनल सोर्स में आपका आता है ट्रांसफ़र, प्रमोशन और ले ऑफ, राइट. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल सोर्स, तो देर आर नंबर ऑफ एक्सटर्नल, बाहर से लोगों को अपॉइंट करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं. आप सिर्फ पॉइंट समझो, डीपली आप आगे पढ़ोगे. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, कैजुअल कॉलर्स, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड कंसल्टेंट्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशंस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, टेलीकास्टिंग, वेब और इंटरनेट रिक्रूटमेंट. सर्चिंग सोर्सेज ऑफ लेबर, जो हमें लोग चाहिए फॉर द गिवन जॉब्स विच हैव फॉलन वैकेंट, उनके लिए कहाँ से लोग अपॉइंट करेंगे, इंटरनल सोर्स से और एक्सटर्नल सोर्स से. सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स. इंटरनल को आप कह सकते हो कि विद इन द एंटरप्राइज आप उस वैकेंट जॉब को पूरा करो, वैकेंट जॉब को फिल करो. एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड से आप किसी को अपॉइंट करो. तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल सोर्सेज. सच सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन से ही आपको उस पोजीशन के लिए एम्प्लॉय मिल जाता है. 2 मेन आर ट्रांसफ़र और प्रमोशन. ले ऑफ इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्स, बट दीज 2 are the most important internal sources. They are transfer and promotion. See, if we are talking about transfer, तो that means transfer मतलब shifting हो जाना. जैसे shifting of employee from one job to another. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पर ACs बनते हैं, ठीक है. AC का फ्रंट कवर लग रहा है, AC के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं वो लग रहे हैं, वायरिंग हो रही है, उसकी पैकिंग हो रहा है AC. तो शिफ्ट कर दिया भाई फ्रंट कवर. यहाँ पर इन चारों जगह पर 4 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. बट यहाँ पर पैकिंग में हमने एक स्पेयर में रखा हुआ है, 5 पीपल आर देयर, वो बहुत नीडी है. आपने एक जॉब से दूसरे जॉब पर शिफ्ट कर दिया. फ्रंट जो AC का लगाने के लिए एक एम्प्लॉय ने जॉब क्विट कर दिया है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट आर 3. तो आपने फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, यहाँ से एक पैकिंग से बंदा उठाकर कवर लगाने के लिए यहाँ पर कर दिया है. तो यहाँ पर 3 + 1 4 हो गए, और यहाँ पर 5 - 1 4 हो गए. आपको दिखा कि आपके पास एक्स्ट्रा है. अगर एक्स्ट्रा भी नहीं होता तो पैकिंग में 4 हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर भी 4 हैं, और यहाँ पर एक ने क्विट कर दिया जॉब. अब जब स्टार्टिंग से काम स्लो होता जाएगा तो पैकिंग वाले बंदे क्या करेंगे, तो आपने पैकिंग वाले एक इंडिविजुअल को, एक लेबर को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ भेज दिया. यहाँ पर 4 हो गए और यहाँ पर रह गए 3. दैट मीन्स यू शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब आपको लगता है कि कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्शन के लिए लाइन देखता है, लेट्स सपोज क्या कैसे काम हो रहा है. आप उसको देखने की बजाय आपने उसको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उसी डिपार्टमेंट में, उसी डिपार्टमेंट से अलग डिपार्टमेंट में, पर काम उसका सेम रहेगा. जो वो यहाँ देखता था उस डिपार्टमेंट में भी वो वही देखेगा. लेट्स सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसका काम था लोगों की अटेंडेंस लेना. अगर उसे सेल्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है तो वहाँ पर भी वो लोगों की अटेंडेंस ही लेगा, लेबर की अटेंडेंस ही लेगा. इससे उनकी ड्यूटीज़ में कोई चेंज नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज नहीं होता है, स्टेटस में चेंज नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि वो मैनेजर बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव से, उनकी ड्यूटीज़ चेंज नहीं होती है. देयर इज़ नो सब्सटेंसिव चेंज इन देयर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस या सैलरी में कोई चेंज नहीं आता है. भाई ये लोग काम तो एक जैसा ही कर रहे हैं ना, टीवी बना रहे हैं. अगर इन्हें 4000 मिल रहा है तो इसे भी 4000 मिल रहा है. लेट्स सपोज 200-500 का डिफरेंस मैटर नहीं करता है.
सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, बस शिफ्टिंग हो जाती है, डेजिग्नेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग वैकेंसी। देखो पैकिंग में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आगे से ही काम स्लो होगा तो पैकिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से एक उठाकर यहाँ कर दिया शिफ्ट, तो ये सबसे ईजी वे होता है, इसे हॉरिजॉन्टल वे कहते हैं। हॉरिजॉन्टली हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग वैकेंसी विद इन एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ शिफ्ट। आप शिफ्ट से भी, आपने देखा नाइट शिफ्ट में 20 पीपल आर वर्किंग, डे शिफ्ट में 18 आर वर्किंग, तो आप थोड़ा इक्वल करने के लिए आप नाइट शिफ्ट से किसी को डे शिफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, सेंड कर देंगे यहाँ पर कि भाई पैसे तो काम करना है, उसको सैलरी लेनी है, तो वो नाइट से डे में करेगा और डे वाला डे से नाइट में भी करेगा, अगर बॉस चाहेगा तो। आपको लग रहा है ओवर स्टाफ नाइट में हो रहा है, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए एक एम्प्लॉय या 2 एम्प्लॉय अपने डे शिफ्ट में भेज देंगे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ वे, मतलब ट्रांसफ़र डज नॉट इन्वॉल्व एनी ड्रास्टिक चेंज। रिस्पॉन्सिबल जो काम वो नाइट शिफ्ट में करता है वही डे शिफ्ट में करेगा, जो डे शिफ्ट में करता है वही नाइट शिफ्ट में करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहेंगी, सैलरी वही रहेगी, स्टेटस वही रहेगा। अगर यहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव है तो इधर भी एग्जीक्यूटिव ही रहेगा, यहाँ पर वो सुपरवाइज़र है तो यहाँ पर भी वो सुपरवाइज़र ही रहेगा। काम तो नहीं बदल सकता ना, जैसे वेल्डिंग करने वाले को पेंटिंग का काम नहीं दे सकते हम, राइट। ओके, नेक्स्ट कम्स प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है बेटा, इट लेट्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। ये वर्टिकल जाता है, आप किसी को हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर रहे हैं, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, फैसिलिटीज़ बढ़ती है, उसका स्टेटस और सैलरी भी बढ़ती है। लोअर लेवल से हायर लेवल पे उसका ट्रांसफ़र कर रहे हो। लेट्स सपोज आप ब्रांच मैनेजर को, जो सिर्फ ब्रांच देखता है, कंपनी देखता है, उसको रीजनल पूरे क्षेत्र का आप मैनेजर बना रहे हो कि आप पूरे रीजनल मैनेजर हो गए, अब आपको पूरा रीजन देखना है हमारा। तो यहाँ पर उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, उसकी फैसिलिटीज़ भी बढ़ेगी, उसको ट्रांसपोर्ट के लिए दिया जाएगा, ठीक है, उसको और हाउस रेंट दिया जाएगा, उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, राइट। सो मैनी कंपनी फॉलो दिस प्रैक्टिस ऑफ फिलिंग हायर जॉब्स। अब इससे जो ब्रांच मैनेजर था उसके नीचे जो और लोग हैं उनके लिए भी चांसेस खुल गए, उनका भी प्रमोशन हो सकता है ना। सो फिलिंग वैकेंसीज इन हायर जॉब्स from within the organization has the benefit of motivating the existing employees, ठीक है। और जो लोग काम कर रहे हैं उनको लगेगा भाई हमारा भी प्रमोशन हो सकता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है बाकी एम्प्लॉयज़ पर। प्रमोशन हायर लेवल पे में लीड टू अ चेन ऑफ प्रमोशंस एट लोअर लेवल। कैसे, जैसे आपने बेटा यहाँ पर देखा ब्रांच से रीजनल मैनेजर बना दिया, अब जो और एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई, क्योंकि ये वैकेंट हो गई जॉब, यहाँ पर किसी को ऑक्यूपाई करना है, तो जो दोज अदर पीपल हु आर वर्किंग उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। अगर वो अच्छा काम कर रहे होंगे, उनमें से जो भी कैपेबल होगा उसका प्रमोशन होकर ब्रांच मैनेजर बन जाएगा वो। तो बाकी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं अगर किसी एक का प्रमोशन होता है तो, राइट। नेक्स्ट, रिकॉलिंग ऑफ लेड ऑफ एम्प्लॉयज़। लेड ऑफ क्या होते हैं, कई बार बेटा कंपनी में ऐसा होता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है, एसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जो लेबर एसी बनाते हैं ना, मैनेजर्स को तो नहीं कोई हटा सकता है, वो परमानेंट होते हैं, मतलब अगर वो खुद से क्विट नहीं करते हैं, कोई मिस हैपनिंग नहीं हो जाती है। बट जो लेबर जो बनाते हैं, जो मेन लेबर होती है हमारी, डिमांड ज़्यादा आ रही है मार्केट में तो हम अपॉइंट कर लेंगे। और नॉर्मल डिमांड है तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, पीछे से सामान नहीं आ रहा है, उस केस में हम बोलेंगे उन्हें, जो हमारे साथ लेबर काम करते हैं, कि यू आर दी टेम्पररी लेबर। मीन्स टेम्पररी सेपरेशन हो जाता है एम्प्लॉयर का, मालिक का एम्प्लॉयज़ से, क्योंकि काम की कमी की वजह से वो उन्हें बोलते हैं भाई अभी काम नहीं है तो अब आप थोड़े दिन या तो कहीं और काम देखो या घर बैठो, जब भी काम बढ़ेगा, मार्केट में डिमांड आएगी प्रोडक्ट की, विल कॉल यू अप। ऐसे एम्प्लॉयज़ को जिनसे वैकेंट पोजीशन फिल की जाती है, दे कॉल्ड लेड ऑफ एम्प्लॉयज़। जैसे ही काम बढ़ा, मार्केट में डिमांड आई एसीज़ की, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, जितने लोग हैं उनसे काम नहीं संभाला जा रहा है, हमने लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ को कॉल करके बुला लिया है। रॉ मटेरियल पीछे से शॉर्ट हो रहा है, डिमांड नहीं आ रही है, तो उस टाइम पर हमने टेम्परेरी उन्हें रखा कि भाई अभी आप काम करोगे, अगर काम होगा तो करोगे, नहीं तो फिर हम आपको नहीं अपॉइंट करेंगे, आप टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हो हमारे लिए। दे आर कॉल्ड लेड ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट। So this is what we have discussed about today is recruitment. We have discussed the internal sources.
राइट। अब इंटरनल सोर्सेज की कुछ मेरिट्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। दिस इज़ व्हाट वी विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर। बेटा इसको अच्छे से एक बार रिकॉल करना, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड ले ऑफ, द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट process. That's all for today. Have a good learning. Thank you.